And today we come with our first lecture on GST. Most important, that is the point of supply. Point of supply मतलब क्या? ये टैक्स की लायबिलिटी आपकी आती कब है? That is your point of supply. पुराने सर्विस टैक्स में हम इसको बोलते थे पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, नए जीएसटी में हम इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ सप्लाई. This is governed by section 12 and section 13 of GST Act 2017. सेक्शन 12 आपको बताता है पॉइंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. सेक्शन 13 आपको बताता है पॉइंट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. आज हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की. वैसे कोई ज्यादा फर्क नहीं है. जो सेक्शंस उन्होंने गुड्स के लिए दिए एग्जैक्टली आइडेंटिकल उन्होंने सेक्शन 13 दिया है सर्विसेज के लिए. तो जो 12(1) गुड्स के लिए वो 13(1) सर्विसेज के लिए. जो 12(2) गुड्स के लिए है वो 13(2) सर्विसेज के लिए. However, we will confine our study to point of supply for goods today. इसमें 5 केसेस है. 5 केसेस बन सकते हैं. पहले वो ध्यान में रखते हैं कि कौन से 5 केसेस बन सकते हैं. फर्स्ट इज नॉर्मल प्रोविजन. कि नॉर्मली अगर आप कोई गुड्स का सप्लाई करते हो तो आपके लिए पॉइंट ऑफ टैक्सेशन या पॉइंट ऑफ सप्लाई क्या है? व्हाट आर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. Supply by vouchers. What is supply by vouchers? Will come when it do this case. जब केस 1, केस 2, केस 3 कुछ भी अप्लाई नहीं हो सकता है तब क्या किया जाए? तो उसके लिए एक और केस है and then there is some addition in value of supply. So these are the 5 cases. ये 5 केसेस में point of supply किस तरह से आता है वो हम आज समझने की कोशिश करते हैं. And as usual we start with our normal provision. Normally how is point of supply date calculated under normal provisions? Normal provisions में किस तरह से हम इसको करते हैं? We take the earliest of the following dates. आपको 2 डेट्स दी है. 2 में से जो डेट पहले हो जाती है वो आपका पॉइंट ऑफ सप्लाई बन जाएगा. डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. अगर आप इनवॉइस इश्यू ना करें तो क्या पॉइंट ऑफ टैक्सेशन की लायबिलिटी बनेगी आपकी? बनेगी. It says date when you are supposed to issue an invoice. So either you issue invoice. If you don't issue an invoice, then the date on which you are supposed to issue invoice under section 31 and date of payment. ये 2 में से जो पहले हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका पॉइंट ऑफ सप्लाई अंडर नॉर्मल प्रोविजंस. फिर से एक बार, date of invoice or date when you are supposed to issue the invoice or date of payment, whichever is earlier. इसमें एक छोटा सा केस है. इसमें एक छोटा सा केस है. What happens when the supplier receives some excess amount over the invoice? क्या उसका कोई लिमिट है? Yes, उसका लिमिट है up to ₹1,000. When the supplier receives extra amount over the invoice up to ₹1,000, तो उस excess amount का point of supply क्या होगा? Date of invoice. I'll give you an example to clarify that excess ₹1,000 over the invoice. समझो आपने मुझे एडवांस दे दिया ₹50,000 का फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स. मैंने आपको गुड्स सप्लाई किया आपने जिस तरह से बोला था, लेकिन एक्चुअल अमाउंट ऑफ द इनवॉइस वाज 49,500. आपने मुझे पेमेंट किया 50,000 का, आपका इनवॉइस बना 49,500 का. सो डिड आई रिसीव अमाउंट एक्सेस ओवर द इनवॉइस? यस. Is it up to that limit of ₹1,000? Yes. तो वो जो ₹500 एक्सेस मिला उसका पॉइंट ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? उसका पॉइंट ऑफ सप्लाई माना जाएगा इश्यू ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस, जहां पर मैं आपका वो ₹500 एडजस्ट करूंगा. आई होप दिस इज क्लियर. These were the normal provisions. We now come to the second case, that is reverse charge mechanism. As you all know, reverse charge mechanism क्या होता है? The supplier is not liable to pay GST. It is the recipient of the goods who is liable to pay GST. उसको हम कहते हैं reverse charge mechanism. उसमें दोस्तों 3 dates दी हुई है. There are 3 dates, and out of those 3 dates, the earliest will become your point of supply. जरा देखते हैं कौन सी वो 3 dates. First, date of receipt of goods. दूसरा, date of payment. Date of payment कौन सा? Date of payment कौन सा? Either the one which is debited in books of accounts or the one which is debited to your bank account, whichever is earlier. And तीसरा, the third, the most important date in case of reverse charge mechanism is the 31st day
फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो इनवॉइस इश्यू किया 30 डेज, उसके बाद वाला इमीडिएट डे विल बिकम द पॉइंट ऑफ सप्लाई डेट। ये तीन में से जो भी डेट पहले आएगी वो आपकी पॉइंट ऑफ सप्लाई की डेट बन जाएगी। इफ एनी ऑफ द अबाउट डेट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पता ही नहीं है ये डेट या ये डेट, तो फिर बहुत सिंपल, रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स ने भी तो अपने बुक्स में एंट्री की होगी परचेज की, तो रिसिपिएंट जिस दिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेगा उस रिसिप्ट की, वो दिन माना जाएगा पॉइंट ऑफ सप्लाई। We come to the next case, that is supply by vouchers. Supply by vouchers, और सर उसमें भी आपने लिखा है identifiable vouchers and other vouchers. Now sir ये तो बता दीजिए कि what do you mean by identifiable vouchers? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। I am the employer, you are my employee. मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको एक होटल का वाउचर दे दिया, मैंने आपको एक इंटरनेशनल रेस्टोरेंट का वाउचर दे दिया। मैंने बोला भाई देखो 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन जा करके अपने फैमिली के साथ वहां पर डिनर ले लेना एंड यू विल नॉट बी चार्ज एनीथिंग, जस्ट शो दिस वाउचर। आपको खाने में एक थाली देंगे हर मेंबर को। तो क्या पॉइंट ऑफ सप्लाई इज द अमाउंट, इज द वैल्यू, इज द what is going to be supplied, is it fixed? Yes sir. Date is fixed? Yes sir. Time is fixed? Yes sir. What is going to be supplied, is that fixed? Yes sir. To whom it is supplied, is that fixed? Yes sir. Everything is fixed. Such vouchers which are issued by me to my employees are called as identifiable vouchers. In identifiable vouchers का point of supply date क्या होगा? Date of issue of voucher. Other vouchers means those vouchers which are not identifiable. सर इसका भी एक एग्जांपल दे देंगे? जी बिल्कुल दे देंगे एग्जांपल इसका एग्जांपल ये है कि मैंने आपको किसी मॉल का वाउचर दे दिया। मैंने आपको बोला भाई ये लो 5,000 रुपए का वाउचर, मॉल में जाओ कभी भी और जो मर्जी आए खरीद लो, 5,000 रुपए तक आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, ये रहे उसके वाउचर। तो आप मॉल में क्या खरीदेंगे, क्या वो फिक्स्ड है? नहीं। कब खरीदेंगे, क्या वो फिक्स्ड है? नहीं। क्या सप्लाई होगा, वो फिक्स्ड है? नहीं, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। इन दैट केस व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सप्लाई? इन दैट केस पॉइंट ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द वाउचर। ये था हमारा प्रोविजन सप्लाई बाय वाउचर्स। हमने 3 केस कर लिया स्टूडेंट्स, नॉर्मल प्रोविजन, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड सप्लाई बाय वाउचर। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ सप्लाई इन 3 में से किसी भी डेट के द्वारा डिटरमाइन नहीं की जा सकती है, तो फिर पॉइंट ऑफ सप्लाई क्या होगा? बहुत सिंपल है, या तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा या तो आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे। अगर आपको रिटर्न फाइल करना है तो योर पॉइंट ऑफ सप्लाई डेट इज डेट ऑन विच यू आर सपोज टू फाइल द रिटर्न। If you are filing the return, point of supply date is the date on which you have to file the return. And in other cases, if you are not liable to file a return, then date on which the tax is paid. Simple. And we come to the last case, addition in the value of supply. सर ये कब हो सकता है? सप्लाई तो हो गया, उस पे एडिशन क्या होगा? होगा ना, क्यों नहीं होगा? आपको सप्लायर ने बोला था 30 डेज में पेमेंट कर देना। अगर आप 30 डेज में पेमेंट नहीं करोगे तो आई विल चार्ज 2% पर मंथ इंटरेस्ट एंड आई विल चार्ज 100 रुपीज पेनल्टी पर डे। तो क्या अब अगर आप 30 डेज में पेमेंट नहीं करोगे तो सप्लाई का वैल्यू बढ़ता जाएगा? यस, बाय द इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट एंड बाय द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पर डे। इससे आपकी सप्लाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ऐसे केस में पॉइंट ऑफ सप्लाई क्या होगा स्टूडेंट्स? पॉइंट ऑफ सप्लाई विल बी द डेट on which such amount is actually received by the supplier. Bas. These are the only 5 cases of point of supply. Normal provisions, reverse charge mechanism, supply by voucher, any of the case not applicable, and addition in the value of supply. I hope you have understood the provisions clearly. Thank you very much and do share this video for knowledge to your friends. Thank you.